Hi everyone, you can see the topic that is graphs. Today we are going to study graphs. What is a graph and what are the main important points? How to construct a graph. शामदीद, जैसे कि स्लाइड के ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है ग्राफ के बारे में है, तो आज हम ग्राफ से मुतालिक पढ़ेंगे और इसके कौन से अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए और कैसे ये ग्राफ बनते हैं। The first question that comes in our mind when we see graphs, that what is a graph? What is the meaning of graph? So here graph is the hub of dependent and independent variables, or it is a locus point. It is the center of two things that is independent and dependent, and we call these two things variables. It is the simplest and most widely used method of presenting the data. In the construction of graph, choice of scale is made first. The scale should be made such that the whole data can be easily plotted on the graph paper available. While plotting the values of the data, the independent variable is taken along x-axis and dependent variable is taken along y-axis. The main interest in graphical method lies in the use of separate scales for the two variables. The value of the coordinates of both the variables are plotted on the graph. Coordinates mean x and y value. The points are joined by segments of straight lines and we get a line chart or a graph. The following points are the important points to be considered in the construction of the graph. जब भी ग्राफ के बारे में बात होती है तो हमें नहीं पता चलता कि ग्राफ क्या है और ग्राफ के मायने क्या हैं, उसको कैसे शो किया जाता है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि ग्राफ दो चीज़ों का मजमुआ है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, जिससे हम कहते हैं वेरिएबल्स। दो चीज़ें जिन्हें हम कहेंगे उनको वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। इसको ग्राफ क्यों यूज़ होते हैं कि वाइडली यूज़, जब ज़्यादा नंबर्स हों, ज़्यादा डाटा हो, उसको प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो स्केल को चूज़ करना होता है, स्केल को चुनना होता है कि स्केल क्या होना चाहिए। और स्केल जो होता है वो होल डाटा को रिप्रेजेंट करता है और उसी पेपर के ऊपर प्लॉट किया जाता है जो पेपर आपको अवेलेबल होता है। और जब हम इनको प्लॉट करने लगते हैं, यानी जब हम ग्राफ बनाने लगते हैं, तो वैल्यूज़ लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो उसको एक्स एक्सिस की में पे लेते हैं, एक्स एक्सिस जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे आता है। ग्राफ के मेथड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो वो स्केल्स हैं वेरिएबल्स की। दोनों एक्स और वाई एक्सिस के स्केल डिफरेंट होते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए और वो बातें अगली स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगी। Dear students and viewers, these are the important points that we have to keep in our mind while constructing a graph. So the first one is the title. The title should be written on the graph
so that the reader can know about the information it contains. Subtitles and footnotes should be added where necessary. The next one is scale. An appropriate scale should be chosen for both the variables so that the data can be displayed clearly on the graph paper available. The scale should be so fixed that the graph shows clearly the variation present in the variables of the data. The scale should be written on the graph. After scale, there is the third one, independent variable. The independent variable should be indicated along x-axis, while dependent variables along y-axis. The next one is the axis. The axis should be clearly labeled, and these labels should clearly state both the variables and their units of measurements. The second last is dependent variable. For the dependent variable, the scale must start at 0. And the last one is graphs for 2 or more data must be clearly distinguished by drawing lines of different colors or shapes. कुछ अहम बातों के बारे में बताना चाहूँगी जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं, जिसकी मदद से सबसे पहले चीज़ जो है वो टाइटल होता है, जो उससे मुतालिक हमें ग्राफ पेपर भी लिखना होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। टाइटल क्या है, वो नंबर्स मार्क्स से भी रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। जहाँ पे हमें सब टाइटल डालने की ज़रूरत होती है, फुट नोट्स की ज़रूरत होती है, हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्केल सबसे अहम चीज़ है। स्केल के लिए पहले वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्स वेरिएबल कौन सा है, वाई वेरिएबल कौन सा है, और एक्स और वाई वेरिएबल की जो वेरिएशन आ रही है, उनमें जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, वो एक फिक्स क्वांटिटी के हिसाब से आनी चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि उसमें हम कहीं पर स्केल ले रहे हैं 5 का, कहीं पे ले रहे हैं 10 का, कहीं पे फिर 9 का ले रहे हैं, कहीं पे 15 का ले रहे हैं, ऐसा नहीं। उसमें सब अगर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो भी इक्वल होना चाहिए, और जो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी एक से दूसरी नंबर के दरमियान जो जंप होता है वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए। अगर 5 ब्लॉक्स का जंप है तो 5 ही हर जगह पे आएगा। अगर 10 ब्लॉक्स का जंप है, फर्स्ट में ले रहे हैं, तो वो 10 ब्लॉक्स का ही जंप आएगा। अगर 2 ब्लॉक्स का है तो 2 ब्लॉक्स का ही आएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में ब्लॉक्स जो होते हैं तो इसलिए आपको ब्लॉक्स से ही पता चलेगा। फिर आपको पता होना चाहिए तीसरे नंबर पे कि वेरिएबल्स कौन कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स एक्सिस, जो कि हमारी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें वाई एक्सिस उसको कहते हैं, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। और इसमें जो चौथे नंबर पे बात है, उसमें आपको जो यूनिट्स दिए हुए होते हैं वेरिएबल्स के, वो आपको शो करने लाजमी होते हैं। उनको लेबलिंग आपकी, यानी लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो 5th नंबर पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका स्केल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसको आप ये नहीं करेंगे कि आप कहीं कोई बड़ा नंबर ले लें और फिर स्टार्ट कर दें, नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 के से हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये कि आप कैसे उसको शो कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक है, 2 चीज़ों का डाटा है, उसको अगर सपोज़ एक है आपके इंग्लिश के मार्क्स और फर्स्ट टर्म में, और इंग्लिश के मार्क्स सेकंड टर्म में, ठीक है, तो आप उस दोनों को डिफरेंट कलर से शो करेंगे, ठीक है, उनको या तो डिफरेंट कलर से शो करेंगे, डिफरेंट लाइन से शो करेंगे, डिफरेंट शेप से शो करेंगे। तो ये ग्राफ बनाने के लिए बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको जहन में रखना ज़रूरी होता है। In this slide, graphical representation, the term graphical representation refers to the use of charts and graphs to visually display, analyze, clarify, interpret numerical data, function and other qualitative structures. Graphic representation is another way of analyzing numerical data. A graph is a sort of chart through which statistical data are represented in the form of lines or curves drawn
across the coordinated points. Coordinated points are x and y plotted on its surface. Graphs enable us in studying the cause and effect relationship between two variables. Diagrams and graphs give a pictorial view of the whole population. The different types of graphs are line graph, line diagram or line graph, histogram, bar graph or bar diagram, pie chart, frequency polygon, ogive and cumulative frequency. स्लाइड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक मुख्तलिफ टर्म्स जो यूज़ हुई हैं वो बताई जा रही हैं कि ग्राफ हम शो करते हैं विजुअल डिस्प्ले, यानी जो हमें नज़र आए सामने ज़ाहिर तौर पे नज़र आए कोई भी डाटा नंबर्स को नंबर्स की फॉर्म में जो होता है उसको क्लासीफाई, उसमें मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करना, उसका तज्जिया करना, उसका न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करना, कि उसका तज्जिया करके उसके डिफरेंट पार्ट्स में कि क्या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंग्लिश में या मैथ्स में मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में या टेस्ट 1 में टेस्ट 2 में, तो उसमें उसी को एनालाइज करना कि तज्जिया करना कि फर्स्ट टर्म में मार्क्स ज़्यादा हैं या सेकंड टर्म में ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। गंदम की पैदावार ज़्यादा है इस साल या पिछले साल ज़्यादा थी, ये भी इससे रिलेटेड हो सकता है। और ग्राफ में का आगे उन्होंने बताया कि उसको न्यूमेरिकल यानी नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है उसको एनालाइज करने का नाम ग्राफ है। और इसके हम कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स पे हम ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेटेड पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करते हैं। और इसके अलावा ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें लाइन, हिस्टोग्राम, बार, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। In the end, I must say thank you so much. If you feel any difficulty related to any question, just email me and I will come with another topic. Till then, Allah Hafiz. आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपने कीमती टाइम या वक्त में से कुछ हिस्सा वक्त का निकाल के मेरी प्रेजेंटेशन को देखा, और मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे क्लियर हो सकेंगी। जहाँ आपको मुश्किल या कोई ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।